आज का टॉपिक सिर्फ डिमेंशिया पे नहीं है. It is of course on cognitive health of our all our elders here. So it is a topic which is covering both the things, whether it is our cognitive health and if anybody has some problems, तो उनके साथ एक्स्ट्रा क्या हम कर सकते हैं. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन्हीं दोनों चीजों पे बेस्ड है. So this is something which is going to be helpful to all, and God forbid, but जिनके problems हैं उनको अगर हम help कर पाए, so it is definitely going to be helpful to them also. So चलिए, I know Dr. Chawla and Dr. Priya are waiting. So let me just begin with today's session, and we'll take your questions after that. So, but thank you all for joining us here today. Extremely grateful. And as you all know, September is the month that is, which is the Dementia and Alzheimer's Awareness Month. And IMOHA, in association with HOPIC ASHA, has been celebrating this month collectively as an aim to provide a well-supported community to all our elders. So keeping this in mind, we all know the caregiving calls that you get lean into love. And we also have, when we give you calls, etc., then that is our way of checking up if all is well with you. But there are times when, like I just mentioned, there are few of us who are going through very difficult times in life, and there are a lot of our elders who are suffering with dementia, which interferes with our daily life activities. And we as a community need to be very empathetic towards not only the elders who go through this, and also the caregivers who are supporting their loved ones who are going through all this. So our today's session is not about medicinal care only, but what we can do as a community and give love and care. And sometimes we just need to be there for our loved ones, not there to fix everything, but just being there so that they know that they are being supported and that they are being cared for. So coming to HOPIC ASHA is the organization that truly means this. It is a voluntary organization dedicated to the care of Alzheimer's disease patients and their caregivers. This organization came into being in 2001, and since then the organization has been relentlessly working to provide care to the patients of Alzheimer's disease and respite to the caregivers through their various intervention models. So today we have with us Dr. Sushma Chawla. She was here earlier also. She is the founder of HOPIC ASHA, and we also have Dr. Priya Jha, the chief psychologist at HOPIC ASHA. So first, I'm going to talk about Dr. Priya because she will be starting off with the session, and then we will go to Dr. Chawla. So talking about Dr. Priya Jha, Dr. Priya Jha is a consultant psychologist with experience in counseling and psychotherapy. She works with individuals, adolescents, couples, and families dealing with a variety of issues through individual and group therapy. She's a consulting psychologist at Sarvodaya Medicenter, New Delhi, and a chief psychologist at HOPIC ASHA. She has been associated with HOPIC ASHA for the last 15 years. So with that, I'm now going to hand over to Dr. Priya. So Dr. Priya, a very warm welcome to our Mo TV. And I know you are going to be talking about cognitive health in our elders, which is definitely applicable to everyone present here. So over to you, and looking forward to the session. Yeah, thank you. Thank you, Ritu, for a lovely introduction. And good morning or good afternoon, everyone. Good afternoon. I think this is my first time with IMOHA, and I'm really looking forward. मुझे बहुत इंतजार था आप लोगों के साथ सेशन लेने का. And आज की जो मेरी टॉपिक है, जैसा उन्होंने बताया, कॉग्निटिव हेल्थ ऑफ एल्डर्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. मैं बस अब शुरू करती हूँ. शेयर स्क्रीन. Just a second. Okay.
I think my screen is visible to all of you. Yes, नजर आ yes. रहा है? Yeah. अच्छा, okay, yeah, right. So जैसा मैंने बताया, this is the topic, cognitive health of older adults, जो कि बहुत ही important aspect है. You know, एक brain health की एक important aspect है cognitive health. हम आज उसी पे बात करेंगे, जो कि it's very very important for each one of us to take care of this aspect on our daily life. So cognitive health, what is cognitive health? So cognitive health is the ability to clearly think, learn and remember. ये हेल्थ का एस्पेक्ट है जहां हमें सोचना, किस चीज को याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मिंग एवरीडे एक्टिविटीज, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा हमेशा ये काम आएगी. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एज आई सेड, दिस कॉग्निटिव हेल्थ इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ ओवरऑल ब्रेन हेल्थ. ब्रेन एक लाइक होलसम चीज है, उसकी एक ये एस्पेक्ट है. ओके, so now brain health क्या है? What is brain health? I'll just go slow and in between अगर कुछ भी question है आप feel करें, please free feel करें पूछने के लिए. So what is brain health? Brain health refers to how well a person's brain function across several areas. So ये जो कुछ areas हैं वो मैं एक पे एक बता रही हूँ आपको. First aspect है इसकी cognitive health, how well you think, learn and remember. This is one aspect of brain health. Motor function, how well you make and control movements including balance. आप अपने बैलेंस को जो कैसे मेंटेन करेंगे और मोटर मूवमेंट्स को कैसे बैलेंस करेंगे, ये एक मोटर फंक्शन, ये भी एक ब्रेन हेल्थ का पार्ट है. इमोशनल फंक्शंस, how well you interpret and respond to emotions, both pleasant and unpleasant. कोई भी इमोशनल एस्पेक्ट है आपके साथ, अच्छाई, कुछ अच्छी चीज है, कुछ गलत चीजें हुई हैं, आप किस तरह से इमोशनली रिस्पॉन्ड करते हैं, ये भी एक ब्रेन हेल्थ का एस्पेक्ट है, जो बहुत हद तक उसको दैट स्किल वी कैन लर्न दोज स्किल एंड वी कैन वर्क ऑन दैट. इट्स नॉट दैट कि आप वो कंट्रोल से बाहर है, हम बिल्कुल उसको आप आई मीन स्किल को लर्न कर सकते हैं. एंड लास्ट एस्पेक्ट है tactile functions, how well you feel and respond to sensations of touch including pressure, pain and temperature. So this which we know कि हाँ ये brain का एक part है कि आपको touch, pressure, pain सब महसूस होती है. So yeah, the next slide is like, now scientific research suggests that the following steps are linked to cognitive health. ये cognitive health वो लिंक करता है कि ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं, लाइफस्टाइल एक्टिविटीज हैं, जो अगर हम उस पर लाइक एवरीडे हम वो प्रैक्टिस करते हैं और वैसी चीजें करते हैं, तो बहुत हद तक हम अपनी कॉग्निटिव हेल्थ को बनाए रखते हैं. मेकिंग दिस अ पार्ट ऑफ योर रूटीन कुड हेल्प यू फंक्शन बेटर. रिसर्च शोज दैट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हेल्दी लाइफस्टाइल बिहेवियर्स मे ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क फॉर अल्जाइमर डिजीज. पहले से अगर हम इन सब चीजों को जो मैंने बताया, इट्स नॉट अ वेरी लाइक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वाली चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, लेकिन हम उसको कैसे उस एस्पेक्ट को इमोशनली, मोटिवेशनली, फिजिकली, खाने के फूड के थ्रू ये चीज हम मैनेज कर सकते हैं. So yeah, the important aspect now comes is take care of your physical health. So physical health में क्या है? Taking care of your physical health may help your cognitive health. Basically ये सारी चीजें आपकी cognitive health को help करती है. So you can, आप सभी जानते हैं कि get recommended health checkups every time, आप periodically अपनी health checkup करवाते रहें. Manage chronic health problems like diabetes, high blood pressure, depression, high cholesterol. ये सब चीजें भी आप लोगों को पता है कि लाइक जब हम डॉक्टर्स को विजिट करते हैं, वो मेडिसिन डॉक्टर देते हैं, मेडिसिन कितनी कम करनी है, कितना ज्यादा लेना है, कब ज्यादा परेशानी हुई. सो दैट व्हाट आई मीन टू से दैट intervention with the doctors is important at this age. Consult with your doctor about the medicines you take and possible side effects on memory, sleep and brain functions. बहुत बार होता है the doctor prescribe you certain medicines, but every medicine
will not suit everyone, depending on the composition, salt composition and all. So the better thing is that आपको कोई भी परेशानी हो रही है अगर उससे, तो आप immediately doctor से get in touch with him so that he can reduce the equation, or maybe he will change the medicine. I mean, these things are very important. One should not take it lightly. कभी कभी होता है कि वो डॉक्टर ने लिख दिया हमें और हम उसको लेते जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई परेशानी है, प्लीज गेट बैक टू रीच योर डॉक्टर. रिड्यूस रिस्क फॉर ब्रेन इंजुरीज ड्यू टू फॉल्स एंड अदर एक्सीडेंट्स. ये भी हमारे हाथ में है कि हम ध्यान रखें. अगर हमारी जब चल रहे हैं, नॉट टू वॉक वेरी फास्ट, देख लें, स्टिक लेके चलें अगर आपको बैलेंस की प्रॉब्लम है, सो दैट की कुछ चीजें हैं जो हम एक्सीडेंट्स एंड फॉल्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते, प्रिवेंट कर सकते हैं. Limit use of alcohol and quit smoking if anyone, like at this age who takes that, ये ध्यान रखना है. Get enough sleep, generally 7 to 8 hours each night, and that is a very very important aspect. Each night से मेरा मतलब ये है कि maybe in a day time also, like day time में जब body थक रही है, जब थकान महसूस हो रहा है, आप प्लीज जाकर रेस्ट ले लें. Don't ever think कि अब रात होने का इंतजार करेंगे. कभी कभी होता है कि योर बॉडी इज टायर्ड, मे बी यू हैव वर्क, आप ज्यादा वर्क कर लिए हैं, आपने फिजिकल एक्टिविटी कर ली, योर बॉडी वांट रेस्ट, एंड इट्स ब्यूटीफुल थिंग दैट द बॉडी हमें सिग्नल देती है, और उस सिग्नल को हमें नजरअंदाज नहीं करना है. जब लग रहा है तो आप छोटी सी एक नैप ले लें दोपहर में, सो दैट रियली हेल्प. सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स जो मैंने बताया, ये डेली अगर हम इस सब चीजों का ध्यान रखें तो बहुत हद तक हम अपनी कॉग्निटिव हेल्थ को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज मैनेज हाई ब्लड प्रेशर. जिसको हाई बीपी की चीजें हैं, we all know that what all need to be done. Preventing or controlling high blood pressure not only helps your heart but may help your brain too, which we know that BP का रोल only heart से related नहीं है, brain से भी related है. Routine visit to your doctor will pick up changes in your blood pressure. To control your blood pressure, your doctor may suggest exercise, lifestyle changes, food में changes. डॉक्टर जो भी बताएंगे, हमें वो चीज अगर करते रहे तो that's really going to help us. It is going to regulate, हम maintain कर रख सकते हैं. These steps can help protect your brain and your heart. Now, yes, very again important cheese is like eat healthy foods, which you all know, but let me just reiterate this particular point. A healthy diet can help reduce the risk of many chronic disease such as heart disease or diabetes. It may also keep your brain healthy, which you all know. I don't have to again, but still I'm just talking on this. Why? Because many people have at this age basically वो sugar, मीठा या कोई एक ऐसी चीजों को खाने का हमारा वो इतना अर्ज होता है, कि we just cheating is one thing. At times छोटा सा खा लिया, थोड़ा खा लिया, but suppose you are diabetic, you really need to take care of your diet. What need to be taken, the portion also, food की कितनी छोटी पोर्शन लेनी है हमें, sugar and salt and fats को थोड़ा कंट्रोल हर खाने में करें हम, और be sure to control, as I say, size and portion of your food. चीजें आप खाएं लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में, and drink enough water and other fluids. ये भी पता है कि हमें ऑलवेज हाइड्रेट करना है बॉडी को. थोड़ी थोड़ी दिन में भी काफी दिल्ली में जो मौसम है, इट इज वेरी टू मच ऑफ मॉइस्चर, एंड बहुत जल्दी एनर्जी ड्रेन हो रही है. सो कीप ऑन हैविंग द ड्रिंक नींबू पानी, नारियल पानी, व्हाटएवर, दही का मट्ठा बनाया, बट थोड़ी थोड़ी देर में ये जो लिक्विड चीज है वो हमारी बॉडी को बहुत हेल्प करता है. खाना तो एक चीज है, बट देन keep having these on a regular interval. Again, we all are seeing in our community that how important, and I'm really happy to see our senior citizens now across the country. मैं ये नहीं बोल रही हूँ दिल्ली में, across the country मैंने ये देखा है कि senior citizens अब बहुत actively participate करने लगे हैं इन सब चीजों में, जो पहले नहीं होता था. पहले बस वो उनको बैठना, पेपर पढ़ना और दैट्स इट. दरवाजा खोल दिया, टंकी की मोटर ऑन कर दी, बंद कर दिया, यही होती थी.
बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी. आई डोंट नो, मे बी शायद ये रोल बच्चों का भी है. मुझे लगता है कि ये बच्चे भी अपने पेरेंट्स को एडवाइस देते रहते हैं जहां भी हैं वो, कि मम्मा वॉक के लिए जाओ, पापा को निकालो घर से. ये मैं चीजें सुनती रहती हूँ, एंड इट्स वेरी. एंड नाउ हर कम्युनिटी में आप लोगों ने एक ग्रुप बना ली है. कोविड की वजह से नाउ मेनी थिंग्स आर ऑन स्टिल, but still, there are many things. So one of the most aspect is physical active. Being physically active through regular exercise, household chores, or other activities has many benefits, which we all know. Keep your improve your strength, have more energy, improve your balance, prevent or delay heart disease, diabetes, and other concerns. Perk up your mood and reduce depression. It's very important. As a psychologist, मैं आपको बता सकती हूँ कि डिप्रेशन में हम कितना मेजरली मोर देन मेडिसिन, हम लोगों को कहते हैं कि बी एक्टिव, घर से निकलो, वॉक पे जाओ, सन में जाके बैठो. इन सब चीजों से मूड आपका चेंज होता है. नेचर में, पार्क में जब आप जाके बैठते हैं, योर मूड एलिवेट्स एंड यू स्टार्ट फीलिंग गुड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स. Yes, keep your mind active, which as a part of OPE Kasha, I know that how diligently volunteers are absolutely connected with all these elderlies, and उनसे इतना काम हम कराते हैं. हमारी volunteers इतना सारी चीजें कराती हैं, and seeing them कि वो इतनी skills, new skills सीख रहे हैं, not सीख रहे हैं, enjoying, इतना खुश हो रहे हैं, पेंट कर रहे हैं, स्केच कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं. कौन करता था पहले? अर्लियर तो अगर ये चीजें करते भी थे घर में बुजुर्ग, तो पीपल यूज्ड टू से कि ये क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो. नाउ पर्पसली उन्हें कहा जाता है कि नहीं, अपनी माइंड को आपको एक्टिव रखना है, सो दैट कि आपकी जो सेल्स हैं वो जनरेट होती रहे, राइट? सो बीइंग इंटेलेक्चुअली एंगेज में बेनिफिट द ब्रेन, व्हिच वी ऑल नो. पीपल हु एंगेज इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज such as following hobbies are happier and healthier. ये रिसर्च ने भी दिखाया है कि ये चीजें बहुत हेल्प करती है. लर्निंग न्यू स्किल्स में इम्प्रूव योर थिंकिंग एबिलिटी टू. कुछ नई चीज आप सीखते हैं तो और भी चीजें, आपकी सोचने की जो क्षमता है, उसकी जो दायरा है वो बढ़ जाता है, एक्सपैंड हो जाता है. आप सोचना शुरू करते हो क्योंकि आपने उसको जनरेट करना शुरू किया. अदरवाइज हम उसको बिल्कुल बंद कर देते थे पहले, खत्म हो गया, ये सब मेरा टाइम नहीं है. देन राइट नाउ व्हेन यू जस्ट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन कोई भी प्ले, अब तो मोबाइल पे भी लोगों ने गेम्स को डाउनलोड कर लिया है, दे प्ले दैट. एक्टिविटीज सच एज म्यूजिक, डांस, राइटिंग, रीडिंग, प्लेइंग गेम्स, लर्निंग न्यू स्किल्स improves quality of life and well-being and may lower the risk of cognitive impairment. Believe me, ये सब चीजों का बहुत बड़ा रोल है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट ना होने का. अगर हम एक्टिव रखते हैं अपनी चीजों को, बहुत खाली बैठे हैं और कुछ नेगेटिव चीजें अगर दिमाग में आ रही है, खाली बैठे हैं, आप उस वक्त अपने आप को कहीं और एंगेज कर लीजिए. आप गाना सुन लो, उसमें डूब जाओ. टीवी चला लिया, कोई मूवी देख लो. बट आप वो जो सोच होती है, अगेन एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं इसको रीइंफोर्स करना चाहूंगी दैट नेगेटिव थॉट्स इज अ किलिंग थिंग. जो चीजें हो गई हैं, जो चीजें हैं, वो चीजों वो है, हो गई, लेट्स एक्सेप्ट इट, है ना. अभी जो हमारे पास ये मोमेंट है, दिस मोमेंट, इसको हम कितनी अच्छी तरह से यूटिलाइज. जब भी नेगेटिव थॉट आए, हमें ध्यान रखना है कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे कोई और चीजों पे ध्यान देना है. फटाक से आपने गए किचन में, आपने लिए चाय बना लिया, माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर दिया या माइंड को कहीं एंगेज कर दिया, तब वो नेगेटिव थॉट्स जो है वो वापस चली जाएगी. नहीं तो ये चीज ऐसी होती है कि अगर ये आदत बन जाए तो दीज नेगेटिव थॉट्स वो आती रहेगी, चलती रहेगी और इसका कोई अंत नहीं है. और आप बहुत आप ऐसी चीजें सोचना शुरू करते हो एक्सट्रीम पे, जो कि बिल्कुल आपके हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए सही नहीं. Okay, so keeping your mind active is one of the most important aspects of elderlies. Yes, now stay connected. It's very good that Imoha is doing such a great work that yes, we all are staying. You all I think every week आप लोग की session होती है शायद ऐसी, और every week you must be looking forward कि आप लोग मिलेंगे, एक दूसरे से मिलोगे, आप लोग इतनी सारी बातें करेंगे. एंड जैसे मैंने कहा कि okay, we are taking a session as a doctor,
बट हम इस सेशन को बहुत ही फ्लूइड तरीके से करना चाहते हैं, जैसे हमारी बातें हो रही है ना, क्योंकि ये कनेक्शन है, ताकि आपको भी ऐसा ना लगे कि यू आर टॉकिंग टू अ डॉक्टर और समबडी हैज कम जहां मुझे इतना ही बोलना है। आप प्लीज फील फ्री कीजिए। So stay connected with social activities. Another important aspect. Consider the options like planning a video call with friends and family. अब जब हम घर में बैठे हैं, कोविड ने तो एक रीजन दे ही दिया है, और वैसे भी बिफोर कोविड ऑल्सो जब बच्चे घर से चले निकल जाते हैं अपने अपने नौकरी में, इसमें आपको कोशिश हमेशा करनी है फ्रेंड्स से भी वीडियो कॉल कर दिया। मोर देन ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल बहुत बेनिफिट करता है। जब आप एक दूसरे को देखते हो, आज हम एक दूसरे को देख के बात कर रहे हो, और अगर मैं वीडियो बंद कर दूं और आपसे बात करूं, वो इम्पैक्ट नहीं होगा। जब हम फेस टू फेस देखते हैं, आप वो जो ब्राइटनेस होती है, जो हमें किक मिलती है, दैट इज टोटली डिफरेंट। और ज्वाइनिंग ऑनलाइन क्लास, ज्वाइन अ वॉकिंग ग्रुप, जो भी करना है इकट्ठे करें। ये जो टाइम है सोशली एक्टिव का, पार्क में बैठ रहे हैं, एक कम्युनिटी में जाके बैठो, आप गपशप करो। Connecting with other people can keep your brain active and help you feel less isolated and more engaged with the world around you. As I said, जो है घर का, जो हमारा एक डायनेमिक है घर का, होता है कि लाइक एक एज आता है जब हमारे बच्चे जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, उनकी सेटल करते हैं, शादी हो गई, जॉब हो गया, they have to go and that's the fact. But अगर हम घर में बैठ के ऑल द टाइम हमें यही लगे कि अब मिस कर रहे हैं, लोनली कर रहे हैं, लोनली लग रहा है, नहीं, वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आपको ये लोनलीनेस को हटाना होगा। जस्ट टेल योरसेल्फ दैट। एंड कैसे आप हटाओगे? आप इसी तरीके से हटाओगे कि लाइक जब आप कनेक्ट होते हो फ्रेंड से, इस तरह की कोई आपने ग्रुप ज्वाइन कर ली है, जो ये मोहा ने आपको प्लेटफॉर्म दी है, वॉक के लिए जाइए, लोगों से मिलिए। जब सत्संग का, जब कोविड के पहले का टाइम था, आई नो द कम्युनिटी में आंटीज लोग सत्संग में जाती थी। दैट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग, कि वो हर 15 दिन में दे यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि किसी एक के घर में जाना है या कार्ड्स खेलना है। यू नो, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी एक जिम्मेवारी खत्म हो गई बच्चों की, लेट्स इट। वो आप फेजेस होते हैं ना इंसान के, वो एक फेज खत्म। अब आपके फेज को आपको कैसे जीना है, वो आपको डिजाइन करना है, ना कि वेट करना है कि जब मेरे बच्चे आएंगे तब हम जाएंगे बाहर, या मेरे बच्चे आएंगे तब मैं खुश होंगी। नो। सो you'll have to plan. जहां आप हैं, this is your life, this is your moment. So live it. Connecting with other people, as I say, okay, studies show that these activities seem to help maintain your well-being and may improve your cognitive function. It's not may improve, it will improve your cognitive function. I must say that, all these activities really helps. Point of time, I know many of you must be having some or other kind of a stress. Mostly family related stress ही होती है। बच्चा बाहर है, उसकी सोच रहे हैं, इसकी सोच रहे हैं, हजार तरह की सोच, सिर्फ सोच ही है, बिकॉज सॉल्यूशन नहीं है और आप कुछ एक्शन नहीं कर सकते हो, तो आप सिर्फ सोचते रहते हो। एंड दिस स्ट्रेस इज वेरी 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 बैड फॉर एनीबडीज हेल्थ, मोर सो ऑफ एडल्ट्स हेल्थ के लिए तो बहुत ही बुरा है। सो कैसे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं? स्ट्रेस इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ, बिल्कुल नेचुरल है। However, chronic stress can change the brain, affect memory and increase the risk for Alzheimer and related dementia. Chronic stress से मेरा मतलब है कि कोई बंदा अगर स्ट्रेस में काफी समय तक रहता है, कुछ समय स्ट्रेस में है, फिर हम निकल गए उससे, दैट्स ओके, उसको कहते हैं मैनेजिंग स्ट्रेस। लेकिन अगर एक स्ट्रेस में आप बरसों से हैं, then that is red signal that this is not good. In fact, डिप्रेशन के लिए भी हम लोग यही कहते हैं कि जब डिप्रेशन की साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है कि वो लोग जो उनको भी डिप्रेशन है, वो काफी समय से स्ट्रेस में रहे हैं, काफी साल स्ट्रेस में रहते हैं, फिर जाके डिप्रेशन होता है। काफी साल स्ट्रेस में हुए, आपको अल्जाइमर, डिमेंशिया, मेमोरी रिलेटेड लैप्सिंग शुरू होती है। सो इसलिए स्ट्रेस आएगा, बहुत नेचुरल है। आप स्ट्रेस को रिलीज करो, स्ट्रेस आएगा, रिलीज करो। कैसे रिलीज करना है? देयर आर वेज। जैसे आप योगा एक आसन है, विच वी ऑल नो दैट, हम जब माइंडफुलनेस, मैं योगा भी नहीं, चलो योगा एक चीज है, बट माइंडफुलनेस एक ऐसी चीज है जब वो कहते हैं कि प्रैक्टिस माइंडफुलनेस विच इन्वॉल्व फोकसिंग अवेयरनेस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। माइंडफुल, आप जहां हैं वही मोमेंट पे आप स्टिल हो जाओ,
बस वही ध्यान लगाओ। अगर आप गाना सुन रहे हो, आप उसी पे बिल्कुल चारों पांचों आपकी जो सेंसेस हैं, इट्स इन्वॉल्व देयर, यू आर नॉट थिंकिंग एनीथिंग। बिलीव मी, दैट रियली रिजुविनेट आवर माइंड। सो छोटी छोटी चीज, हम अब लोगों से बात कर रहे हैं, वॉक के लिए जा रहे हैं, वॉक पे मैं अकेली वॉक कर रही हूँ बट स्टिल माइंडफुल, मैं उसी मोमेंट में हूँ, यू विल फील वेरी वेरी, दिस इज अ, हम लोग कहते हैं कि ये आंख खोल के मेडिटेशन करने वाली चीज है। लास्ट, स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना है। कोई भी ग्रजेस किसी से भी कंप्लेन है, कुछ भी है, लाइक यू नो, सो आप सबको एक कहते हैं ना कि एक फॉरगिव करना शुरू करो, खत्म यहाँ से, लाइक यू नो, लेट्स स्टार्ट फॉरगिविंग एवरीवन एंड लेट्स स्टार्ट बी फीलिंग वेरी हैप्पी एंड लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड कि इतने समय आपने कैसे बिताया, और से हर चीज के लिए खुश, हर चीज। आज अगर सेशन पे भी आप लोग आए हो, you must be thankful every time, gratitude that okay, I spent my day absolutely beautifully. So ये gratitude का सेंस होना और grudges को हट निकालना, कोई complain नहीं, these are the things, you know, which will help you managing your stress. Reduce risks to cognitive health. So we all know that the genetic, environmental and lifestyle factors, they all influence cognitive health. ये सारे फैक्टर्स है जो हमारी कॉग्निटिव हेल्थ को, सो जेनेटिक फैक्टर इज इनहेरिटेड, तो उसको तो हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज जेनेटिक फैक्टर, तो वो कंट्रोल नहीं हो सकता। बट जो लाइफस्टाइल फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, वो हम बिल्कुल उसको हम मैनेज कर सकते हैं। ये कौन सी फैक्टर्स हैं आगे मैं बता दूं। So yeah, so this is some physical and mental health problems such as high blood pressure or depression. Suppose आपको फिजिकल हेल्थ है तो ये तो मैनेज किया जा सकता है कि आप डॉक्टर से हैं, आप परामर्श कर रहे हैं, आप मेडिसिन ले रहे हो। डिप्रेशन में है, देन आप मूड चेंज करने के लिए जो जो चीजें कर रहे हो, ये तो ये मैनेज किया जा सकता है। ब्रेन इंजरी सच एज दोज ड्यू टू फॉल, जो मैंने पहले भी बताया, गिरने का डर, थोड़ा संभाल के चलना, ये सब चीजें तो मेरे हाथ में है। That I can do. Some medicines or improper use of medications, कभी कभी कोई मेडिसिन से भी हमारी साइड इफेक्ट्स होती है। अगेन मैंने पहले पीछे भी बताया कि इफ दैट थिंग अकर्स, यू प्लीज रीच योर डॉक्टर, मैनेज कर सकते हो। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर मैं फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही हूँ तो मुझे पता है कि लाइक यू नो दीज हेल्थ इश्यूज विल अकर। सो अगर नहीं कर रहे हो, आप अभी से शुरू करो कि छोटी छोटी फिजिकल एक्टिविटी। पुअर डाइट, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, स्लीप प्रॉब्लम, सोशल आइसोलेशन, सारी बातें हम कर चुके हैं। सो ये जो भी चीजें ये हमारे हाथ में, ये कंट्रोल के बाहर नहीं है। इफ यू आर गोइंग टू कंट्रोल दीज एस्पेक्ट्स, वी आर वेरी वेरी श्योर दैट यू नो वी आर गोइंग टू प्रिवेंट आवर कॉग्निटिव हेल्थ। Now, so yeah, lastly, by taking steps now to reduce your risk for cognitive decline, you will help to maintain your cognitive health for the future. आज अगर हम अपनी इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारी cognitive health बिल्कुल हमारे हाथ में, you know, many aspects. So and don't hesitate to reach out to people, you know, कोई भी चीजें, suggestions, advice, and yes, that's it. And please feel free to ask any question. And over here, I can hand over to Ritu. Yes. Yeah, we can take questions. Yeah, Ritu. Yeah. We can take questions, or we'll wait for Dr. Chawla's session to be over, whatever. Yeah, just wait a minute. Yeah. So I hope आप सबको ये सेशन समझ में आए हो। मैं मतलब I really hope that I was able to explain this everything to you all. आपने तो बड़े अच्छे, डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी तरह समझा दिया है, और absolutely you know we have been able to grasp the things. Thank you. In a very simple way, you have explained everything. It was very knowledgeable. Thank you so much. I have one question. So, Dr. Priya, thank you so much. We will take the question answers after we, have Dr. Sushma's
Okay. session also. Yeah. Right. So in the end, we will be taking the question answers, ladies and gentlemen. So a very, very insightful session, Dr. Priya, and of course very helpful also. And now coming to Dr. Sushma Chawla. So as you all know her, but still for all those people who've joined in new today. So Dr. Sushma Chawla is a medical practitioner and an alumni of Maulana Azad Medical College. She has been working since 2001 to raise awareness about dementia and provide a quality life and respite to the caregivers and to the basically to patients who have dementia. Her mission has been to establish a daycare and a residential care facility for dementia patients, which was achieved in July 2019. It's the first Alzheimer's home and it has been now operational in New Delhi since then. Dr. Chawla has also been awarded with the Gold Medal by the High Commissioner of UK at House of Lords, London, for her outstanding work in the field of Alzheimer's. Recently, she was also invited as a plenary speaker at the 14th World Summit on Alzheimer's Disease, Dementia Research and Awareness, Boston, USA, to present a paper on financial and legal issues of dementia patients. So with that, Dr. Chawla, a very warm welcome to you. And last time we had a wonderful, wonderful session with you, and which was very self-explanatory, and the way you explained things was, very, very nice. So thank you. Today, so over to you for today's session, and continuing with what Dr. Priya has just said. So over to you. Thank you. सबको बहुत बहुत नमस्कार. बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे दोबारा मिलने का. And it is such an active organization, इमोहा, और सबके साथ, सीनियर्स के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट किया हुआ है. And definitely somebody had brought up a point कि सीनियर्स के साथ तो कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन जिन्होंने हमारी केयर करनी है उनको भी तो अवेयरनेस होनी चाहिए ना, यंगस्टर्स के लिए. हम लोग उनके लिए भी प्रोग्राम करते हैं कॉलेज लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि उनके पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है. वी डू कंडक्ट ऑल दीज प्रोग्राम्स. सो टुडेज टॉपिक इज मैनेजिंग द बिहेवियरल सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया पेशेंट्स. सारा सितंबर हम डिमेंशिया की ही बात करते रहे हैं. हम तो थ्रू आउट यही करते हैं, लेकिन सितंबर इज वर्ल्ड अल्जाइमर्स मंथ. पहले सिर्फ 21 सितंबर को मनाया जाता था, अब पूरा सितंबर का महीना सारी दुनिया में ये सिर्फ अल्जाइमर्स मंथ की तरह मनाया जाता है. और अल्जाइमर्स डिजीज इज अ टाइप ऑफ डिमेंशिया, और उसके जो बिहेवियर सिम्टम्स होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं मैनेज करने के लिए. आपकी फैमिली में ना हो, लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली में जब आपको पता चलता है कि किसी के यहाँ कोई डिमेंशिया का पेशेंट है और वो इतने स्ट्रेस्ड हैं, जैसे डॉक्टर प्रिया ने बताया कि स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, लेकिन अल्जाइमर्स का स्ट्रेस तो मैनेज होता नहीं है. उसको बहुत देर तक इग्नोर हो जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता वो क्यों इतना मिसबिहेव कर रहे हैं. सो जस्ट अ ब्रीफ अबाउट डिमेंशिया, रिकलेक्टिंग आवर मेमोरी. एंड इसको तो बार बार बोलना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसको जितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया जाए उतना ही अच्छा रहता है. और जैसा कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि एक न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर है ब्रेन का, जो कि हमारी मेमोरी, थिंकिंग स्किल, रीजनिंग और जजमेंट हमारी पुअर हो जाती है. जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो श्रिंक होते जाते हैं, सिकुड़ते जाते हैं, तो उससे हमारे वैसे ही कॉग्निशन हमारी पुअर होती जाती है. लेकिन जो हमारी कॉग्निशन जो है,
हमें अफेक्ट करे हमारी मेमोरी पे, सोचने के तरीके पे, रीजनिंग कि भाई ये क्यों हो रहा है, और पुअर जजमेंट, जैसे ड्राइव कर रहे हैं, लाल बत्ती हो गई है, मुझे रुकना है, और अगर आप नहीं रुकेंगे तो आपकी जजमेंट पुअर है। तो जब इनको अफेक्ट करती है तो दैट इज डिमेंशिया। यूजुअली इट कम्स इन ओल्ड एज, लेकिन अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया भी देखने में आता है। इट कैन स्टार्ट एज अर्ली एज 35 years एंड इट गोज अननोटिस्ड। सिर्फ बाहर के लोग ही आके बताएंगे। इट अफेक्ट्स योर डेली लाइफ, और जो सबसे सैड पार्ट है कि आप इतने स्मार्ट, इतने एक्टिव और इतने रोबदार इंसान, सडनली दिस डिजीज इट रॉब्स यू ऑफ योर पर्सनैलिटी। इसकी जो मैनेजमेंट है वो थोड़ी सी ट्रिकी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये डिजीज किसी में है, और ये जरूरी नहीं कि आपकी फैमिली में है। आप शाम को सैर करने जाते हैं, आपको किसी का बिहेवियर अजीब लगता है, उसको शर्माइए मत, उनको ना कह सकें, जो वो तो रजिस्टर ही नहीं करेंगे। आप उनकी फैमिली से बात करिए। हो सकता है फैमिली इनिशियली बुरा मान जाए, लेकिन जब उनके साथ मैनेजमेंट में डिफिकल्टी आएगी तो वो डेफिनेटली आपको याद करेंगे कि इन्होंने मुझे पॉइंट आउट किया था। आजकल लोग अगर आप पॉइंट आउट करें तो वो इमीडिएटली जाके डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। इसका डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करिए। यू नीड टू कंसल्ट योर फैमिली फिजिशियन फर्स्ट एंड देन द न्यूरोलॉजिस्ट। और मोस्टली जो सिम्टम्स हैं बिहेवियर के वो न्यूरोलॉजिस्ट ही हैंडल कर लेते हैं। साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती until unless it is very very advanced. There are medications available to only slow the process of degeneration of the brain. लेकिन ये जो प्रोसेस है डिजेनरेशन का, ये तो एज के साथ तो होना ही होना है, और अगर डिजीज आ गया तो ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए वेरियस पॉइंट्स मैं आगे बताऊंगी। और अगर बिहेवियर उनका खराब हो रहा है तो देयर आर एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स टू मैनेज द बिहेवियर सिम्टम्स। और सबसे बड़ी बात जो की टू दी मैनेजमेंट, इट इज अ कंपैशनेट केयरिंग। आपको उनके साथ प्यार से बिहेव करना है। रीजन बीइंग कि अगर वो गाली भी निकाल रहे हैं तो आप ये समझिए कि ये वो नहीं निकाल रहे हैं जो आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, आपकी वाइफ है या आपके हस्बैंड है। इट इज नॉट हिम, इट इज द डिजीज विच इज स्पीकिंग। डिमेंशिया के साथ जो मैं आपको नई चीज बताने लगी हूं कि आपको रिकॉग्नाइज करना है कि स्यूडो डिमेंशिया भी होता है। किसी को लगता है, जैसे हम जब भी लेक्चर करते हैं तो लोग फट से हमें कह देते हैं कि हमारी तो याददाश्त बड़ी कमजोर हो गई है, हमें ये भी नहीं याद रहता, हमें नाम नहीं याद रहते, और पुरानी बातें सारी याद रहती हैं। रिमेंबर, डिमेंशिया, ओल्ड एज, आपको पुरानी बातें हमेशा याद रहेगी, बिकॉज दैट इज द लास्ट पार्ट टू डिजेनरेट। ओके, नई चीजें भूलते हैं। सूडो डिमेंशिया के लोग भी भूलते हैं। सूडो का मतलब है नकली। लुक्स लाइक डिमेंशिया, एजिंग लीड्स टू इंक्रीज इन फॉरगेटफुलनेस, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ये डिमेंशिया तो नहीं। आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, आप रोटी भी बना रहे हैं, साथ साथ सब्जी भी बना रहे हैं, साथ साथ सीरियल भी देख रहे हैं और फोन पे भी बात कर रहे हैं। लेडीज के अंदर ये पेरीमेनोपॉजल फेज भी एक आता है मेनोपॉज से पहले, दैट इज अराउंड 49-50। तो उस स्टेज में लेडीज बहुत ज्यादा डिप्रेसिव हो जाती हैं और बात बात पे गुस्सा करती हैं। उनको बिना बात पे नहीं, बिना बात के गुस्सा करती हैं, और उनको हल्का हल्का पसीना आना और इरिटेशन होनी, ये फेज भी ऐसा लोगों को लगता है कि शायद ये डिमेंशिया हो रहा है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, एवरी फॉरगेटिंग इज नॉट डिमेंशिया। Every old person does not get dementia. Most of them don't. इसके कॉज क्या होते हैं? सूडो डिमेंशिया के कॉजेस बता रही हूँ। इनिशियली लोनलीनेस, आप बहुत अकेले रहते हैं। डॉक्टर प्रिया ने बड़े अच्छे से समझाया है कि आप सोशली एक्टिव रहिए।
हाइपोथायराइडिज्म, मोस्टली आप देखेंगे कि जब हमारे पास भी लोग आते हैं तो कहते हैं मैडम मैं थायराइड की दवाई खा रहा हूं। तो ये थायराइड डिसफंक्शन एज के साथ साथ आ जाता है, उसको उससे भी मेमोरी की प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं, एंड दैट इज रिवर्सिबल डिमेंशिया। डिहाइड्रेशन, अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो गिव सिम्टम्स लाइक फॉरगेटफुलनेस। पोस्ट ऑपरेटिव, लॉन्ग एनेस्थीसिया से आप निकल के उठे हैं और सडनली आप किसी को पहचान नहीं रहे हैं, तो ऐसा ना तो फैमिली सोचे ना पेशेंट सोचे कि मुझे याद नहीं आ रहा या मैं पहचान नहीं पा रहा है। ये एक टेम्पररी एनेस्थीसिया का इफेक्ट है। कई दफा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, बड़े लोग खाते भी कम हैं और जितना खाते हैं उतना पच भी नहीं पाता है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब भी नहीं करती है। तो उसे करते करते और फिर ब्लड कार्डियक डॉक्टर्स और दूसरे ये थायराइड के एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ये सारे कह देते हैं नमक कम खाओ, घी कम खाओ और तेल, ये और भी चीजें मेरे को ध्यान नहीं आ रही, बहुत सी चीजें वो कम कर देते हैं। अच्छा, वो करते करते, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो हमारी है ही जो सब कुछ सिखा देती है, हमें बहुत बढ़ाती है और बहुत सी चीजें अच्छी भी होती हैं उसके अंदर। और विटामिन B12 डेफिशिएंसी, अगेन आई विल से कि बड़े लोग जो हैं कच्चा फ्रूट, दांतों की प्रॉब्लम होती है और सैलेड खाना, यही सोर्सेज हैं हमारे विटामिन B12 के, और वो ये लोग नहीं खाते हैं और जितना खाते हैं उतना एब्जॉर्ब भी नहीं होता है। और यहाँ मैं एक आपको टिप बताऊंगी कि अगर आपसे खाया नहीं जाता है गाजर, सेब या कोई और फ्रूट, अब केला अगर आपको मना है डायबिटीज के लिए तो उसको कुतरा कर लीजिए, कुतरा करके उसको धीरे धीरे खाइए। कुतरा भी नहीं चबाया जाता है तो forget about it, just mash it and take it like a juice. जूस मैं बिल्कुल एडवाइज नहीं करती हूँ यूजुअली, लेकिन अगर नहीं खा सकते हैं तो जूस ले लीजिए, उससे विटामिन B12 तो मिलेगा आपको। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सूडो डिमेंशिया है कि डिमेंशिया है? लैंडमार्क इसका जो डिफरेंस है वो है कि हिस्ट्री जो है वो पेशेंट खुद बताएगा सूडो डिमेंशिया में, और डिमेंशिया की हिस्ट्री फैमिली बताएगी। ये सबसे बड़ा डिफरेंस। मेरे पास अभी एक हफ्ता पहले एक पेशेंट आई थी एंड हर फादर हैड डिमेंशिया एंड शी वाज जस्ट 50 years old एंड शी सेड कि डॉक्टर मेरे को ना डिमेंशिया हो गया। उसने पूरे सिम्टम्स, पूरा ड्राइव करके वो खुद आई, बहुत दूर से वो आई थी, और सारी हिस्ट्री उसने खुद बताई क्या क्या उसके साथ होता है, और मैंने बड़े तसल्ली से उसकी पौना घंटा उसकी हिस्ट्री सुनी, और बाद में मैंने उसको बोला कि तेरे को डिमेंशिया नहीं है क्योंकि तूने सब कुछ तो खुद बताया मेरे को। न्यूरोसाइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन जब इनकी होती है तो इनका स्कोर बहुत अच्छा होता है। डिमेंशिया में पेशेंट कभी नहीं बताएगा कि मैं भूल जाता हूं, फैमिली बताएगी, पेशेंट इज लीस्ट कंसर्न, और जो MMSE स्कोर है एक हम टेस्ट करते हैं वो बहुत लो होता है। तो ये तो डिफरेंसेस थे डिमेंशिया और सूडो डिमेंशिया के, और थोड़ी सी आउटलाइन थी डिमेंशिया के बारे में। अब जो सबसे ज्यादा चैलेंज होता है वो है बिहेवियर चैलेंज। लोग जब घर में कोई स्पाउस या पेरेंट्स जब भूलने लगते हैं ना, मैंने कहाँ रखा था, इसका मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, मेरा पर्स नहीं मिल रहा, और आप उनसे पूछो कि अभी क्या खाया था आपने, तो दे विल नॉट बी एबल टू टेल यू। तो आपको लगता है कि ये भूल ज्यादा रहे हैं, लेकिन आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनका भूलना आपको बॉदर नहीं कर रहा, बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, तो थोड़ा सा बॉदर करता है। तब तक बहुत लेट हो जाता है डॉक्टर पे जाने पे। फैमिली कब आगे आती है? जब बिहेवियरल चैलेंजेस आ जाते हैं, जब पेशेंट का बिहेवियर बदल जाता है। और बिहेवियरल क्या बदलता है? बिहेवियर रेपिटेटिव क्वेश्चनिंग, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछना। एक दो बारी पूछे तो फैमिली उस वक्त भी नहीं बॉदर करती है, एंड आई विल नॉट ब्लेम द फैमिली ऑल्सो।
द फर्स्ट कॉज इज कि उनको अवेयरनेस बहुत कम है। दूसरा कॉज है कि वो खुद भी तो अपनी फैमिली में बिजी हैं, उन्होंने भी अपने बच्चे पालने। आप अंदाजा लगाइए 80 इयर्स के आदमी को प्रॉब्लम आ रही है, उसका बच्चा जो है वो 40, 45, 50 के आसपास होगा। उस वक्त उनके भी बच्चे बड़े हो रहे हैं और सीनियर स्कूल में हैं, कंपटीशन एग्जाम्स दे रहे हैं। There is a lot of stress on them also. So I will definitely not blame the children, but surely I request the whole family to notice everything and inform the doctor. Aggression, बिना बात के गाली निकालना शुरू कर देते हैं, मारने को दौड़ते हैं, स्पेशली मेड्स को, सर्वेंट्स को। वॉन्डरिंग, आपने कई दफा सुना होगा, पेपर में भी पढ़ा होगा कि घर से निकल गए हैं। ये क्यों होता है? उनको अपनी पुरानी चीजें याद हैं, नई चीजें भूल जाते हैं। वो यहां तक भूल जाते हैं कि मेरे को ये मेरा घर है। और घर कौन सा याद रहता है उनको? जो उनका पाकिस्तान में था, या अगर साउथ दिल्ली में आए हैं तो उनका चावड़ी बाजार का जो घर था, या चांदनी चौक का घर था, जहां लोग मोस्टली लोग आके सेटल डाउन हुए थे। तो उसको सोचते हुए जब देखते हैं कि घर में कोई नहीं है, तो he tries to go out to his own house and then he moves out of the house, और 10 कदम चलने के बाद वो भूल जाते हैं। इसका मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे क्या करना है। एक्सेसिव ईटिंग और लेस ईटिंग। बेदिंग सबसे बड़ा चैलेंज है बिहेवियर का, कि वो नहाना ही नहीं चाहते, और नहाने के टाइम पे इतनी कुश्ती होती है कि केयर गिवर भी थक जाता है और पेशेंट भी थक जाता है। स्लीप डिस्टर्बेंस, दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं, और 3 बजे उठ के रात को कहते हैं कि चलो घर चले या मुझे ऑफिस जाना है। क्राइंग स्पेल्स, जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज में, किसी कन्वर्सेशन में हिस्सा नहीं लेना चाहते, और अगर कोई कन्वर्सेशन चल रही है तो उसके अंदर वो अग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे, गाली गलौज शुरू करेंगे, तो इम्प्रॉपर लैंग्वेज यूज करेंगे, जिससे कि जो लोग बैठ के बातें कर रहे हैं दे फील वेरी वेरी एम्बैरेस्ड। एंड दिस इज वन थिंग विच रियली बॉदर्स द फैमिली, और इसको टैकल करना आसान भी है, मुश्किल भी है। डिसरोबिंग, इस सबसे जो मेन चीज है डिसरोबिंग। लोग ड्राइंग रूम में बैठ के उनको सडनली याद आता है कि मैंने तो अब कपड़े नहीं बदले, तो वहीं वो अपने कपड़े खोलने शुरू कर देते हैं। दे रिमूव देयर पायजामास, दे रिमूव देयर शर्ट। इवन माय मदर यूज्ड टू रिमूव हर शर्ट सिटिंग इन द ड्राइंग रूम, और मुझे नहीं पता था कि वो ये क्यों कर रही। मैं फट से उनके ऊपर तौलिया दे देती थी और उनको अंदर लेके जाती थी। बट दिस कैन बी मैनेज्ड ऑल्सो। अब आते हैं हम इसकी मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि ये बिहेवियरल सिम्टम्स जो हैं ये सारी फैमिली का पूरा सिस्टम बिगाड़ देते हैं। उनकी फिजिकल हेल्थ पे अफेक्ट करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करते हैं, और फैमिली के अंदर बच्चे होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, आगे उनके बच्चे होते हैं, और अगर अर्ली एज में शादी हो जाए तो आगे उनके भी बच्चे होते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं। तो इट इज अ वेरी बिग चैलेंज टू फाइट। मैनेज कैसे करें? सबसे पहले अवेयरनेस अपनी बढ़ाएं, लर्न अबाउट द डिजीज एंड डिस्कस द स्पेसिफिक प्रॉब्लम विद द डॉक्टर। अगर आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, रेगुलरली जाइए आप, और उसके साथ आप बात करके आइए, मैं आपसे फोन पे किस टाइम से कब तक मैं आपसे बात कर सकती हूँ, और उनके साथ स्पेसिफिक प्रॉब्लम बात डिस्कस करिए। जो उन्होंने मेडिसिन दी है उसके इफेक्ट आप डिस्कस करिए कि भाई आपने ये दवाई नहीं शुरू करी थी, इससे तो मेरी मम्मी बहुत सो रही हैं, या इससे वो गाली गलौज ज्यादा निकाल रही हैं, या इससे वो सो ही नहीं रही हैं रात को। बिल्कुल स्पेसिफिक इफेक्ट उस मेडिसिन का करिए। डेफिनेटली अ डिमेंशिया केयर गिवर वांट्स टू टॉक। उनका दिल इतना भरा हुआ होता है कि वो बात करना चाहते हैं, और उनको सबसे पहले कौन मिलता है? डॉक्टर, जो कि पेशेंटली उनकी बात सुन लेता है। लेकिन डॉक्टर के पास भी इतना टाइम नहीं होता, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज बी शॉर्ट
be specific, make notes, and discuss the specific problem. Third part is that make a routine. जैसे आपने उनको 10 बजे तक दवाई देके सुला देना है, या आपने उनको सुबह उठा के और किसी के साथ उनको सैर के लिए भेजना है, या इतने बजे उनको नाश्ता करना है. यू मेक अ रूटीन एंड फॉलो इट. अगर उनको 12 बजे आपने लंच देना है या 1 बजे लंच देना है, तो 1 का 1:15 तो कर दीजिए, लेकिन 1 का 2 नहीं करिए. उससे उनका रूटीन सब गड़बड़ हो जाएगा. हम लोग इस रूटीन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं. और इफ 1 o'clock इज द लंच टाइम, तो हैंड वॉशिंग के लिए उनको ले जाना शुरू कर देते हैं कि आप चलिए हैंड वॉश करिए. 1:15 बजे ये शुरू हो जाता है. बाथरूम में से लैचेस, अंदर की जो कुंडी होती है, वो हटा दीजिए अगर आपको ये डिमेंशिया के पेशेंट्स आपके घर में हैं तो, क्योंकि वो कुंडी तो लगा देंगे लेकिन उसको खोलना कैसे है वो नहीं खोल सकेंगे. हो सकता है ऐसा भी. और जब वो आप बाहर से दरवाजा खड़काएंगे, वो अंदर से खड़काएंगे, दे विल गेट सो स्केयर्ड एंड सो डिस्टर्ब कि उस दिन का सारा रूटीन ही आपका खराब हो जाएगा. पुट लेबल्स. पॉट के ऊपर जो WC है वहां पर लेबल लगा के रखिए. सिट फॉर योर potty, sit for your lift the latch, lift the cover of the WC, push the flush. इस तरीके से आप लेबल्स लगा के रखिए. और बाथरूम के बाहर बहुत बड़ा बड़ा लिख दीजिएगा बाथरूम. टर्न ऑफ द गैस, उसका मेन कनेक्शन हटा दीजिएगा. हमारे पास बिल्कुल अभी अभी एक लेडी आई थी, वेरी एक्टिव, बट शी हैड माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और उनका डिमेंशिया शुरू हो रहा था. एंड शी वाज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग. तो उनकी फैमिली उनको कुकिंग में इनग्रॉस रखती थी, लेकिन 2-3 बारी वो गैस खुली छोड़ के चली गई. नाउ दिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर द पर्सन एंड फॉर द हाउस ऑल्सो. तो पर्सनल लॉस भी हो सकता है, प्रॉपर्टी लॉस भी हो सकता है. और उसको जब काम खत्म हो गया है थोड़ा सा वॉच करके रखिए और उसको गैस को पीछे से बंद कर दीजिएगा. बी काम. अगर कोई भी ऐसा बिहेवियर हो, बी काम. प्रैक्टिस ऑल दी एक्टिविटीज विच डॉक्टर प्रिया हैज एक्सप्लेन्ड यू. उससे अपना मन शांत रखने में बहुत हेल्प मिलती है. एंड सीक हेल्प. टॉक टू द पीपल कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को हेल्प करो. सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन करिए. उनसे पूछिए कि मेरे को ये दिक्कत आ रही है मैनेजमेंट में, मैं कैसे करूं. और मैं अपनी मम्मी को किसी भी सेंटर में या किसी भी ओल्ड एज होम में नहीं डालना चाहता, तो मुझे सजेस्ट करिए, मुझे प्लीज गाइड करिए कि मैं ये चीजें कैसे करूं. जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है बेदिंग की. नहाना ही नहीं चाहते. नहाना क्यों नहीं चाहते? वो डरते हैं पानी से. आप खुद भी अगर रिकलेक्ट करें कि पानी से यूजुअली लोगों को बहुत डर लगता है. जो स्विमर्स हैं उनकी बात अलग है. जैसे मेरे को पानी से बहुत डर लगता है कि मैं अगर पानी के किनारे या गंगा के किनारे या कहीं भी बैठी हूं तो मुझे अपने सिर्फ पैर ही पानी में डालने अच्छे लगते हैं. कोई कहे कि नीचे उतर के आप नहा लो तो मेरे तो प्राण ही सूख जाते हैं. आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ वाटर. देन ईटिंग. अगर वो नहाने से घबरा रहे हैं, उनको पानी का डर है, तो उनको पहले प्रिपेयर करिए कि आज हम नहाएंगे, 1 घंटे बाद नहाने जाना है, क्योंकि उसके बाद हमने मॉल जाना है, या आपकी फ्रेंड आ रही है, या आपकी जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं फ्रेंड आ रही है, या आपकी पोती आ रही है, या आपकी दोती आ रही है, या आपकी बेटी आ रही है, बहू मिलने आ रही है, जिसके साथ आपको लगे कि इनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं. उनका नाम लेके आप उनको इनकरेज कर सकते हैं बेदिंग के लिए. बाथरूम के अंदर सारी डिस्ट्रैक्शंस हटा दीजिए. वहां पर जो पानी है ना तो ज्यादा गर्म होना चाहिए ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए. और उनको जब आप अंदर लेके जाएं तो बाथरूम में चेयर रखिए. चेयर में बिठा के उनको
कहिए कि अब आप बैठिए और नहा लीजिए और अपने कपड़े उतारिए. हेल्प देम, बट एट द सेम टाइम रिस्पेक्ट देयर डिग्निटी. आप खुद एक इमेजिन करके देखिए कि किसी के सामने, इवन नर्स के सामने हॉस्पिटल में भी, वो कहता है जी ये कपड़े चेंज कर लो आप, ठीक है. तो कितना बुरा लगता है अगर आप बाथरूम में चल के जा नहीं सकते तो आप अपना कपड़े खुद उतारो या नर्स उतारे. कितनी शर्म आती है. वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, लेकिन जो इनका अफेक्टेड माइंड है, इनके माइंड में भी शर्म आती है, क्योंकि वो भूल जाते हैं. इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इनको शर्म नहीं आएगी. कपड़े उतारते टाइम भी उनके सामने इस तरीके से एक तौलिया पकड़ लीजिए और उनको बताइए कि आप अब कपड़े उतारिए. एक हाथ से उनको थोड़ा हेल्प करिए कपड़े उतारने में. लो मैं आपको थोड़ा थोड़ा हेल्प कर देती हूँ. एंड कवर देम. द मोमेंट यू रिमूव देयर क्लोथ्स, कवर देम. पतले पतले अंगोछे मिलते हैं, वो डाल दीजिए उनके प्राइवेट पार्ट्स पे. लेडीज हैं तो उनके आगे टॉवल डाल दीजिए. एंड देन यू टेल देम कि अब आप साबुन लगाइए, ये पानी गर्म है, आप साबुन लगाइए. थोड़ा थोड़ा पानी उनके हाथ पे डालिए कि आपको ठीक लग रहा है. ये स्टेप्स जब आप लेंगे तो दे विल फील रिलैक्स्ड, दे विल नॉट बी स्केयर्ड, और अपने आप वो साबुन मलते रहेंगे. जस्ट सिट, स्टैंड एट देयर बैक, नेवर इन देयर फ्रंट, बिकॉज दे डोंट लूज देयर डिग्निटी, दे मे लूज देयर फुल मेमोरी. नेक्स्ट चैलेंज आता है खाने में, कि मुझे ये नहीं खाना, ये नहीं खाना. उनसे पूछिए आज आप क्या खाएंगे. एंड इफ दे आर नॉट एबल टू टेल, गिव देम 2 ऑप्शंस, नॉट मोर देन 2 ऑप्शंस. और कोशिश करिए कि वही पसंद की चीज उनकी बनाएं और उनके लिए एक भूमिका बांधें कि आपने पनीर बोला था ना आज मेरे को, तो ये देखो मैंने पनीर बनाया है. तो थोड़ा सा रिकलेक्शन हो जाएगी और खाना ज्यादा टेस्टी हो जाएगा. ये मत सोचिए कि उनकी मेमोरी चली गई है तो उनको किसी भी प्लेट में खाना दे दीजिए. ऑलवेज रिमेंबर दैट ही और शी हैज बीन अ वेरी रिफाइंड लेडी, जिसने कि सारा घर बनाया है, फैमिली बनाई है. आज उसकी मेमोरी चली गई तो क्या हो गया. आप उसके लिए उसी डिग्निटी के साथ खाना परोसिए. मैट लगाइए, टेबल लगाइए और कलरफुल प्लेट्स लगाइए. जैसे आपकी जो प्लेट्स हैं वो कोई भी फेडेड नहीं होनी चाहिए. सुंदर सुंदर चीजें लगाइए उनके लिए और उनको बताते भी जाइए, देखो मम्मा आपकी पसंद की प्लेट लगाइए, ये देखो मैं थोड़ी सी सब्जी आपके लिए डाल रही हूँ. वो एक्सप्रेस कर सकें या ना कर सकें, लेकिन डेफिनेटली उनकी ब्रेन की स्टिमुलेशन पॉजिटिव साइड पे हो जाती है. थर्ड चैलेंज इज डिसरोबिंग, जो मैंने आपको बताया था. बहुत एम्बैरेसिंग होता है फैमिली के लिए कि वो पब्लिक में बैठ के कपड़े उतार देते हैं. शाम को जब सैर करने जाते हैं तो पार्क में बैठ के कपड़े उतार देते हैं. पहला काम, आगे की तरफ बटन मत लगाइए. इवन जेंट्स के भी, उनके भी बटन जो हैं बैक साइड पे कर दीजिए या ऊपर से ही डालने वाला डाल दीजिए. जो लेडीज हैं वो यूजुअली ऊपर का ही ड्रेस उतारते, पजामा तक नहीं आते हैं. अगर आ जाएं तो पजामे को भी इलास्टिक रखिए, नाड़े मत करिए. स्क्रीमिंग, अब वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं. इतनी स्क्रीमिंग जो है वो बॉदरसम हो जाती है कि आपको समझ नहीं आती कि क्या करें. जस्ट काम योरसेल्फ, फाइंड द रीजन. They don't scream, they don't shout without any reason. उनको या तो delusions हो रही हैं या hallucinations हो रही हैं और या उनको कहीं ना कहीं दर्द हो रही है. तो वो धीरे धीरे उनकी बाजू मूव करिए, उनको कंसोल करिए, उनके बैक पे जाके पैट करिए. मैं हूं ना आपके साथ, आप ऐसे मत चिल्लाइए, हम सब हैं यहाँ पर, आप अकेले नहीं हैं. Hold their hand, pat their hand. Crying spells, जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं. अब वो जो रोना है वो हर समय बिना बात के नहीं होता. अगर अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया है और लेडी 50 साल की है तो उसको मेनोपॉजल भी हो सकता है. और अगर एल्डरली लेडी है, हो सकता है उसको कुछ याद आ जाए और वो रोना शुरू कर दे. हो सकता है उसको अपनी कोई बेटी याद आ जाए जो कि जिसकी बड़ी ट्रैजिक सर्कमस्टेंसेस में डेथ हुई थी. तो उसका थोड़ा रीजन ढूंढिए
दर्द हो रही हो। हमारी एक पेशेंट थी जो कि हमें देखते ही रोना शुरू कर देती थी, एंड देन वी फाउंड आउट कि उसकी बगल में ना एक छोटी सी फुंसी हुई थी, वो उसके कारण रो रही थी। लोगों को नहीं बोल रही थी कि शर्म आएगी उसको बताने के लिए, पर जैसे ही उसने मेरे को देखा, जैसे ही उसने हमारी एक वॉलंटियर को देखा, एक हमारी काउंसलर को देखा, वो इतनी जोर जोर से उनके गले लग के रोने लग पड़ी। तो वी जस्ट सैट डाउन विद हर एंड ट्राइड टू फाइंड आउट कि ये क्यों रो रही है, कुछ तो हुआ है। और कारण हमें मिल गया, उनकी बगल में फुंसी हो गई थी, एंड देन वी जस्ट क्योर्ड इट एंड शी वाज फाइन। अग्रेशन, वो मारने को दौड़ते हैं, गाली गलौज निकालते हैं, उसका भी कॉज फाइंड आउट करिए। इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज ऑफ इंटरेस्ट, बैडमिंटन खेलना शुरू करिए, कुर्सी पे बैठे बैठे, खड़े होके कोई एक्टिविटी मत करिए। लेस टीवी, मोर म्यूजिक एंड वॉकिंग। बहुत ब्रीफली मैं आपको म्यूजिक के बारे में बताऊंगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो आई एम क्रॉसिंग माई लिमिट्स एज फार एज द टाइम इज कंसर्न। म्यूजिक इज knit into the fabric of our mind, body and soul. कोई भी गाना बजता है, हम कहीं भी बैठे होते हैं प्रोग्राम में, हमारे पैर खुद ब खुद उठने शुरू हो जाते हैं। उसकी डिटेल्ड हिस्ट्री लीजिए, उनकी पसंद का म्यूजिक बजाइए, उनकी प्रेफरेंसेस देखिए, प्लेलिस्ट बनाइए, हेडफोन यूज करिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो है वो माइंड को बहुत स्टिमुलेट करता है। इसके बारे में आप कभी भी हमारी वेबसाइट पे जाके आप और पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बिहेवियरल पैटर्न्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। म्यूजिक इज द बेस्ट मेडिसिन। और अगर आप उनके सामने एक बच्चों वाला कैसियो रख देंगे और उनको बजाना शुरू करवाएंगे तो वो अपने आप उनकी उंगलियां चलनी शुरू करती हैं। इट इज प्रूवन। मोटर एंड सेंसरी स्टिमुलेट, उनकी उंगलियां भी चलती हैं और उनका दिमाग भी चलना शुरू करता है। और जब म्यूजिक लगा देते हैं तो उनको खाने में और नहाने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती। और तो और जो उनको एंटीसाइकोटिक मेडिसिन्स मिल रही हैं उसकी डोज भी कम होती जा रही है। और जब उनकी डोज कम होती जाएगी तो केयर गिवर भी शांत रहेगा और पेशेंट भी शांत रहेगा। एक छोटी सी थेरेपी मैं आपको समझाना चाहूंगी, बेबी डॉल थेरेपी। ये शायद आप लोगों के लिए नई है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रेमिनिसेंस थेरेपी। रेमिनिसेंस क्या होता है? पुरानी चीजें याद रखना। जैसे मैंने आपको भी बताया था, वॉन्डरिंग में उनको पुराना घर याद आता है और वो निकल जाते हैं। यूज ऑफ लाइफ हिस्ट्रीज रिटन ओरल और बोथ टू इम्प्रूव द साइकोलॉजिकल वेलबींग। The therapy is used for the older people. अब इसको हम कैसे यूज करते हैं? पहले हम बताया करते थे फैमिली एल्बम्स, शादी की एल्बम, बच्चों की एल्बम, वो दिखाइए। लेकिन उससे ज्यादा अफेक्ट करती है बेबी डॉल थेरेपी। उनके सामने एक अच्छी क्वालिटी की सॉफ्ट सेफ डॉल जो एक बच्चे जैसी लगे, उनको कंफर्टेबल करके बिठा दीजिए और उनके सामने उनके आई लेवल पे वो डॉल को रख दीजिए और फिर देखिए वो कितने शांत हो जाते हैं और कितने प्यार से वो गुड़िया को उठाते हैं। और अगर आपको लगे कि कोई उनकी बैड मेमोरी है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन या चिल्ड्रन को लेके, तो स्किप दैट एंड डोंट यूज अ बेबी लैंग्वेज। जस्ट वॉच देम, डोंट फिडल विद देम। इसका इम्पैक्ट हमने क्या देखा है अपने पेशेंट्स में कि सोशल इंटरैक्शन बढ़ गया है और उनकी वोकैबुलरी, उनको शब्द ही नहीं मिलते थे बोलने के लिए, लेकिन अब वो सारे शब्द बोलते हैं डॉल के साथ, जो वो अपने बच्चों और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बोलते थे। और ये सब करके उनका मन शांत हो जाता है और उनकी नींद भी बेटर हो जाती है। इट गिव्स देम द सेंस ऑफ सिरेनिटी। एजिटेशन जो है वो कम हो जाती है। और अगेन मेडिसिन्स के जो डोजेज है वो भी कम हो जाती है। थोड़ा सा मैं आपको प्रिवेंशन बताना चाहूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डॉक्टर प्रिया ने बहुत कुछ बता दिया है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी इसके, जस्ट 2 स्लाइड्स। बी एक्टिव फिजिकली, लीड एन एक्टिव सोशल लाइफ, डू रेगुलर प्राणायाम, अनुलोम विलोम,
and Om chanting is very important and stimulate both your brains. अब आप कहेंगे stimulate both your brains क्या? हम अगर राइट हैंडेड हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम करेगा, लेफ्ट हैंडेड हैं तो हमारा राइट ब्रेन काम करता है, लेकिन हमारे ब्रेन के दो हिस्से, हमें दोनों को यूज करना है, क्योंकि अगर इधर का नहीं काम करेगा तो उधर का काम करेगा. एंड इट इज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स विल इंक्रीज टू टेक केयर ऑफ अवर एक्टिविटीज. दो तरीके बताऊंगी मैं आपको. अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो राइट हैंड से लिखिए, दिन में एक पेज जरूर लिखिए. अगर आप राइट हैंडर हैं तो आप लेफ्ट हैंड से जरूर लिखिए. और एक बचपन में एक सजा मिला करती थी, दोनों कान ऐसे पकड़ने के लिए, ठीक है ना, इसको पकड़िए एंड एटलीस्ट 15 बारी जरूर पकड़िए, सजा समझ के नहीं, एक एक्सरसाइज समझ के. और अगर आप उठक बैठक कर सकते हैं, जो कि ओल्ड एज में बहुत मुश्किल है, तो जस्ट होल्ड योर ईयर्स, both your ears on the opposite side, and this really stimulate your brain. Third exercise is आंख बंद करके अपना नाक टच करने की कोशिश करिए, 10 बारी इस तरफ, 10 बारी इस तरफ. This will improve your sense of balance and improve the circulation in your small brain, cerebellum. Or these are the ways we can prevent the onset of dementia. Thank you very much. Sorry for exceeding my time, but ये चीजें बहुत जरूरी थी आपके लिए. Excuse me. Thank you so much, Dr. Chawla. Your lecture was very informative. I just want to know one thing, that are you running a home where these dementia patients are kept? Yes. Okay, where is it? Safdarjung Enclave. Safdarjung Enclave. Okay. Yeah. All right. Thank you so much. Excuse me, what are the remedies? Is there any remedy for recent memory loss in old age? Usually we remember the past memories, but recent memories, supposing फ्रिज में से सामान लेने गए या कमरे में अलमारी में सामान लेने गए और वहां तक जाते जाते भूल जाते हैं क्या लेने आए थे. रिसेंट मेमोरी लॉस के लिए कुछ बताएंगे? ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन मेरे को हर उसमें मिलता है मुझे. देखिए, अगर आप फ्रिज के पास गए हैं और आप भूल गए हैं कि मैं क्या निकालने आई हूँ, हाँ जी, तो आपको डिमेंशिया नहीं है, ठीक, क्योंकि आपको याद है कि आप फ्रिज में से कुछ लेने आई हैं. क्या लेने आई हैं वो क्या आपको भूला हुआ है. तो अगर आपको ये इतना याद है तो आपको डिमेंशिया नहीं. लेकिन डेफिनेटली अपने ब्रेन सेल्स को हेल्दी करने के लिए ये जितनी एक्सरसाइजेस मैंने बताई हैं, डॉक्टर प्रिया ने बताई हैं, एक्टिविटीज बताई हैं हम लोगों ने, ये सारा कुछ जरूर करिए. एंड दे do have an impact on your brain. Believe me, they do have an impact. ठीक, thank you. More questions for Dr. Chawla or Dr. Priya? I don't think questions होने चाहिए, because आप दोनों ने इतने अच्छे से explain करा, इतने simply explain करा कि and you covered up everything so beautifully कि उसमें गुंजाइश ही नहीं है. But still, anyone if they still do have something. Very nicely both of you explained. Thank you. I guess not. So thank you so much. Thank you so much, Dr. Priya, for such a wonderful and enlightening session, and बहुत ही insightful. And both ways, like I mentioned earlier before we started, कि ये प्रोग्राम सिर्फ डिमेंशिया एल्डर्स के लिए ही नहीं है, और फॉर द केयर गिवर्स इट वाज आल्सो रिलेटेड टू एनी वन ऑफ अस एज सच, बिकॉज कॉग्निटिव हेल्थ हमारी कैसी है, क्या होता है उसमें, कैसे उसको ठीक रख सकते हैं. सो ये सब कुछ ही आपने कवर करा. एंड देन ऑफ कोर्स वी वेंट ऑन इनटू द डिमेंशिया पार्ट ऑफ इट, पीपल हु have this and the caregivers and all that, and how we can take care of it. So very beautifully integrated and explained by both of you. And I think बहुत सारी, I think Dr. Uppal, Mr. Tej Krishnan wants to ask a question. Yeah.
Good afternoon, doctor. I have a question. Is taking B12 injection, does it need any precaution, test doses? Doctor, taking डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है, डिस्टर्बेंस बहुत हो रही है ऋतु. हाँ जी, यस डॉक्टर उपल. You were talking about, you please unmute yourself. Unmute. Yeah, please unmute yourself. Yes. I just wanted the little repetition of the last two exercises, because writing with the opposite hand we knew since very long, but these two exercises we didn't know for the using the both sides of the brain. Yeah. One is the holding of the ears with the opposite hands. Pinna of the, I mean. हाँ, इस तरीके से I can demonstrate it. ये जैसे मिलती होती थी स्कूल में. And other is touching your nose with the opposite hand. Right. Opposite side. Left hand, yeah. This side. Both hands you have to do one by one. And both hands. 15 times, yeah. एक दफा राइट से, एक दफा लेफ्ट से. Okay. 15 बारी राइट से करिए और 15 बारी लेफ्ट से करिए. This stimulates your cerebellum. We should make some, I mean, few members groups where we can, you know, spend out our feelings, you know, because nobody can understand what the caregivers are going through, where we can really wind out, you know, because the people who have not seen AD, they can't realize, neither the relatives nor the friends nor the, you know, and we can't bother you so much, you know, every time. You can bother me anytime. I can understand, but I don't feel like you are doing already so much for us. Mrs. Uppal, we will be restarting our share and care group, and you will get the information through Ritu. Okay. So just to clarify on this, I know there are a lot of our elders who are going through this, and I can totally understand and empathize with our caregivers, and that is exactly the reason why we have collaborated with Hopik Asha, because हम ये समझ सकते हैं. I have been speaking to a few of the elders who are caregivers and going through a very, very difficult time, and like Mrs. Uppal mentioned, कोई समझ नहीं सकता है कि उनके ऊपर क्या बीत रही है. ये जब आप खुद उस सिचुएशन में होते हैं तभी समझ में आता है. एंड आई नो सम पीपल विल फील नहीं इसका क्या फायदा है, बट जो लोग इसके थ्रू जा रहे हैं इसका बहुत फायदा उनको अगर थोड़ा सा अगर आप एक दूसरे से बात करेंगे, बिल्कुल एक दूसरे से बात करेंगे सपोर्ट, तो लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ इस सफर में, मेरे साथ बहुत लोग हैं. Bilkul, and that is the whole aim where we are going to start a support group. This was the initial thing that we've done कि एक बार हम पूरा यहाँ समझा सकें, आप लोग समझ सकें क्या क्या है, and then for all the caregivers and all, we are going to start a separate support group where we will have a small, meeting as such, wherein you can speak to the doctors also, and then this group will be made wherein you will have access and you can share your feelings with each other and also get to know people who are going through a similar situation as you are. So this is already in the pipeline, Mrs. Uppal. So ये बस बिल्कुल initial stage है जहाँ पे हम इस platform पे. Even sometimes one feels like talking to a statue and, you know, take out everything. नहीं, आप बस हौसला रखिए, Mrs. Uppal. We all are there for you, and अभी आपने डॉक्टर चावला एंड डॉक्टर प्रिया को भी सुना, ये तो बहुत देर से इसमें है. सो वी आर डेफिनेटली देयर, एंड देयर आर लॉट ऑफ एल्डर्स जिनसे यू नो वी विल जस्ट नेक्स्ट मंथ ओनली वी विल हैव दिस स्पेशल सपोर्ट ग्रुप जो एक अलग टाइम पे सिर्फ आप लोगों के लिए होगा, जहाँ पे आप सब अपनी बातें शेयर करें. Only for the caregivers of Alzheimer's. Absolutely. That will be a smaller group which will be done. So thank you so much once again. My question is there. Oh, I'm so sorry, Mr. Yes, please do. The question is there to Dr. Chawla. Say, suppose there is an elderly person in the house
who has shown some indications of dementia. She may be my mother, or she may be anybody at home. So do you suggest some medication for her in the early stages also? Yes. उनका सबसे पहले तो उनकी न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट होनी चाहिए बाय अ साइकोलॉजिस्ट। कि उनको कितना उनकी फॉरगेटफुलनेस जो है या जो भी उनके साइंस हैं वो कितने पार्ट ऑफ ब्रेन को अफेक्ट कर रहे हैं, और ये एक साइकोलॉजिस्ट ही बता सकता है। वो डिटेल्ड हर पार्ट का एग्जामिनेशन करते हैं बाय देयर ओरल इंटरव्यू। दे हैव स्पेसिफिक क्वेश्चंस and they orally they sit for about 1.5 hours with the patient and with the family and try to make out that this part of the brain is less active and this part of the brain is normal. वो करने के बाद then you need to take that report. That report takes about 3 to 4 days to come. और उसके बाद you should consult the neurologist. Neurologist बहुत अच्छे neurologists हैं who are qualified in dementia field, and वो आपको दवाइयाँ देंगे। जैसे इनकी एक्सिलॉन दवाई है, इनके लिए एरिसेप्ट है, जो दवाइयाँ हैं इनसे उनकी प्रोग्रेशन हॉल्ट हो जाती है या स्लो हो जाती है। और जो भी बिहेवियरल सिम्टम्स हैं, अगर चिल्ला रहे हैं या रो रहे हैं या बहुत ज्यादा जैसे डिस्टर्ब हैं, वंडर आउट कर रहे हैं, तो इन सब चीजों के लिए मेडिसिन्स होती हैं। अब ये सारा काम तो हो गया, दवाई भी दे दी, ये भी कर दिया। अब क्या करना है? अब उनको आपने खाली नहीं बैठने देना। उनके लिए आपने जो पूरा का पूरा दिन का रूटीन बनाना है, और उस रूटीन के ऊपर यू नीड टू स्टिक टू दैट रूटीन। इतने बजे ब्रेकफास्ट, इतने बजे वॉक, इतने बजे लंच, और दोपहर को घर में क्या करते हैं? नाश्ता किया, सो गए, लंच किया, सो गए, और फिर उठाया, शाम की चाय पी, फिर सो गए, फिर इधर उधर बैठ गए थोड़ी देर के लिए, घर में कोई किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया, फिर जाके सो गए। अब इतनी नींद लेके वो रात को कैसे सो जाएंगे? सही बात। तो यू नीड टू फाइंड आउट हिज इंटरेस्ट, हिज और हर इंटरेस्ट, और उसके लिए हम लोग हमारे जो काउंसलर्स हैं वो इतनी अच्छी एक्टिविटीज डिजाइन करती हैं कि आप घर बैठे भी उनको कर सकते हैं ऑनलाइन। आप जब हमारा डे केयर शुरू हो जाएगा, कोविड के कारण उसको सस्पेंड करना पड़ा, तो आप डे केयर में भी ला सकते हैं, इमोहा में भी कर सकते हैं। आप बेसिकली क्या है कि उनके ब्रेन को स्टिमुलेट करना है, के साथ बैठ के वो एक्टिविटीज करनी है। और उससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क। हाँ, कि हम कुछ मीनिंगफुल कर रहे हैं। से कोई हारमोनियम बजाना या कोई और चीज उनके साथ बैठ के उनको कहो भी आप हारमोनियम बड़ा अच्छा बजाते हो, बजाना शुरू करो। ना बजा सकें, लेकिन अगर वो पहले बजाते थे तो धीरे धीरे वो बजाना शुरू कर देंगे। दैट इज हाउ वी एक्टिवेट देयर ब्रेन। We design them as per the intellect of the patient, language, and their education level and development of the family. Thank you very much. So with that, we come to end of today's session. So thank you so much, Dr. Priya, and thank you so much, Dr. Chawla. Like I mentioned, it's been a very insightful and very simply explained, and हर एक चीज आपने इसमें इतने अच्छे से करी, चाहे वो cognitive health के बारे में थी, चाहे वो dementia and the difference between dementia and other forgetfulness as such, the behavioral changes. So, you know, the mental health of a caregiver, जैसे अभी हम देख ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा support group की ज़रूरत है, which we are going to start. And even Dr. Priya ने जैसे पूरे पूरा बताया कि cognitive health पे कैसे ध्यान दें और कितना हमें क्या-क्या करना चाहिए so that our brain always remains activated. So thank you so much,
and we hope to continue with our sessions with you. And I hope it is extremely helpful to all the elders who joined us here today. So thank you so much, everyone, for joining us. Thank you. Thank you very much. Thank you, Ritu. Thank you. And Dr. Dr. Chawla, Chawla, Dr. Priya. Again, looking forward to your support, and sure, and of course with Dr. Priya also. And yeah, we will sure. Again get back to you and have that smaller group Definitely. with you again. Definitely. Where we can just meet the caregivers. Right. So thank you so much, everyone, and see you all at 5 in the evening. Thank you. Bye-bye. Take care.